गुड गुड इवनिंग एवरीवन। एक बार रिवाइज करो, लास्ट क्लास में जो किया था हमने। वी डिड द कंडीशन फॉर मिनिमा। कंडीशन फॉर मिनिमा वाज a sin theta equal to n lambda, and condition for secondary maxima was this. In single slit diffraction, ये कंडीशन थी सेकेंडरी मैक्सिमा की। n की वैल्यू 1 2 3 एंड सो ऑन। n को 1 डालोगे, so you'll get first minima, and 2 second minima, 3 third minima. This is for secondary maxima. N को 1, 3 lambda by 2, n को 2, 5 lambda by 2 and so on. ये हमने लास्ट क्लास में किया था। एक और चीज है, width of central maxima. This is O dash, and this is the single slit AB. There was central maximum like this, फिर उसके दोनों साइड में फर्स्ट मिनिमा आ गया था। दिस इज फर्स्ट मिनिमा, and this is also first minima. So we have minima on either side of the central maxima. There could be, 2-mark question that derive the formula for width of central maxima. This is A. If I join this with central minima, sorry. So this angle is theta, and this angle is also theta. Distance between the single slit and the screen was capital D. This is the screen over here. First minima on either side of central bright fringe. सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज की जो डिस्टेंस है वो बेसिकली डेल्टा एक्स ले लेते हैं। डेल्टा एक्स इज विड्थ ऑफ सेंट्रल ब्राइट बैंड और फ्रिंज। तो सेंट्रल ब्राइट बैंड और सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज का विड्थ डेल्टा एक्स विल डेराइव द फॉर्मूला फॉर द सेम। लिख लो एक बार, इतना डायग्राम बनाओ, हेडिंग डाल दो विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा, तो न्यूमेरिकल भी आ सकता है। विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा और CBF, सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज इन सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन। 20th को तुम्हारा टेस्ट है तीनों चैप्टर्स का, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। डायग्राम बना लो एक बार।
तो अगर हम दो मिनिमा के बीच का डिस्टेंस निकाल लें, बिकॉज दे आर टू मिनिमास ऑन ईदर साइड ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा, तो हमें विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा मिल जाएगा. सो लुक एट दिस ट्रायंगल. इफ यू वांट यू कैन नेम इट. इसको ओ ले लेते हैं. O dash A. In the right triangle O dash A. What is tan theta? Tan theta would be, because this is delta x, this would be delta x by 2 divided by the base, which is basically D. As theta is small, tan theta will be sin theta only. Theta is quite small, so we can replace sin theta को theta से replace कर सकते, और sin theta से भी replace कर सकते हैं. They are all equal. So this is sin theta is equal to delta x by 2D. But the condition for the first minima is what? Condition for the first minima is a sin theta is equal to lambda. n को 1 डाल दिया, ठीक है. As a condition for the minima is, nth minima is this. If you substitute n is equal to 1, you'll get the first minima. और देखा जाए तो ये फर्स्ट मिनिमा ही था ना साइड में. तो a sin theta is lambda. यहां से sin theta substitute कर दो. So when you substitute sin theta is delta x by 2D is equal to lambda. So that gives you the formula for width of central bright fringe or central maxima in diffraction pattern. So delta x का formula आ गया, इसको याद करना है. 2 lambda d by a. This is the width of central bright fringe in Young's double slit experiment. So distance between two minimas on either side is equal to the central bright fringe, width of central bright fringe. Distance between two minimas or either side is equal to the width of central bright fringe. Page number 90 में आ जाओ. Page number 19, question 41 of the assignment. Question 41 on page 19 of the assignment.
मिल गया क्वेश्चन? A slit of width A illuminated by a monochromatic light of wavelength 700 nanometer wavelength दिया हुआ है and you're supposed to find value of A. फर्स्ट पार्ट में A फाइंड करना है. लैम्डा इज बिन गिवन 700 नैनोमीटर, उसको कन्वर्ट कर लो मीटर में. एंड फर्स्ट मिनिमम की पोजीशन दे रखी है. फर्स्ट मिनिमम इज एट एन एंगल थीटा इक्वल टू 30 डिग्री. हाँ, तो ये वाला मिनिमा का ये वाला कंडीशन यूज कर लो. ए साइन थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा, एन को 1 डाल दो. ए साइन थीटा, इसको नैनोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करो, 10⁻⁻⁹ हो जाएगा. ए साइन 30 इज इक्वल टू एन लैम्डा. एन की वैल्यू 1 होगी. लैम्डा इज 7 × 10⁻⁷. सो दिस विल बी इन मीटर्स. ये जो आंसर आएगा वो मीटर में आएगा. शनाया हो गया? नहीं सर, कर रही हूँ। मोस्टली न्यूमेरिकल यंग्स डबल स्लिट से आते हैं, बट स्टिल इन केस इस पे आएगा तो यू कैन यूज दिस फॉर्मूला. हो गया? सेकेंड पार्ट. हम्म. अच्छा नहीं है. फर्स्ट मैक्सिमम एट एन एंगल 30 डिग्री. फर्स्ट मैक्सिमम सेकेंड पार्ट में फर्स्ट मैक्सिमम एट एंगल 30 डिग्री. तो इसमें तो तुम्हारा आंसर आ ही चुका है. साइन 30 वाली 1/2 डाल दो. 7 × 10⁻⁷ सो ए वुड बी 14 × 10⁻⁷. अगर इसको मिलीमीटर में कन्वर्ट करना है तो क्या होगा? 14 × 10⁻⁷. मिलीमीटर का मतलब 1000 से मल्टीप्लाई करोगे, मिलीमीटर में आंसर आएगा. सो इट विल बी 14 × 10⁻⁴ millimeter or 1.4 × 10⁻³ meter. So this is the width of the slit. हाँ, ये वाला यूज करोगे. इस वाले में हो रहा है फर्स्ट मैक्सिमा एट थीटा इक्वल टू 30 डिग्री. तो मैक्सिमा की कंडीशन है ए साइन थीटा इज इक्वल टू 2n+1 λ/2. n को 1 ले लो, तो ए साइन 30. n को 1 डालोगे 3 λ/2 हो जाएगा. लैम्डा की वैल्यू वही है, 7 × 10⁻⁷ मीटर. 2 2 कट जाएगा. 21 × 10⁻⁷ मीटर, और it would be 21 × 10⁻⁴ मीटर. अगर किसी इसी क्वेश्चन में होता व्हाट इज द विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा इन ईच केस, तो कुड हैव यूज दिस फॉर्मूला. और उसके समय डिस्टेंस बिटवीन द स्क्रीन भी देना चाहिए. लिख लो, इसी में क्वेश्चन में आगे लिखो. इन द अबव क्वेश्चन find width of central maxima. Find width of central maxima if distance between the screen, if the distance between the screen and the single slit is 2 meter.
The width between the screen and the single slit is 2 मीटर. मतलब कैपिटल डी दिया हुआ है हमें. ए इस वाले में ये वाला यूज हुआ है, दोनों पार्ट में अलग अलग हुआ. दोनों केस में विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा अलग आएगी बिकॉज ए की वैल्यू अलग है. सेंट्रल मैक्सिमम फॉर्मूला ये है 2 λ/d/a. कैपिटल डी 2 मीटर दिया हुआ है. ए तुमने दो अलग अलग केस में दो निकाले हुए हैं, उनको यूज कर लो. देखो क्या आ रहा है. हम्म. यूनिट क्या है? कितना मिलीमीटर? मीटर कैसे आ जाएगा? विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमम. इतना ज्यादा आ रहा है? अच्छा वो मैंने. ओके. हाँ तो क्वाइट ह्यूज. एनीवेज वो तो मैंने ऐसे ही दे दिया, मन से इसलिए आ रहा है. फर्स्ट पार्ट में डेल्टा एक्स आ रहा है 2 λ. लैम्डा कितना था? 7 × 10⁻⁻7. और कैपिटल डी 2 मीटर दे रखा है. डिवाइड बाय ए. ए इज 14 × 10⁻⁷. ठीक है. यस ह्यूज. 2 मीटर. मतलब या दिस इज मतलब डिस्टेंस बिटवीन द टू मिनिमा ऑन ईदर साइड. दोनों सेंट्रल मैक्सिमम है, दोनों साइड में मिनिमा आता है ना, तो दो डार्क बैंड्स के बीच में इतना डिस्टेंस आ रहा है. बहुत बड़ा हो गया. बिकॉज थीटा वॉज क्वाइट ह्यूज ना. थीटा वॉज 30 डिग्री. बहुत 1 डिग्री 2 डिग्री टाइप्स बहुत छोटा होता है. वो 30 इसलिए दिया फॉर कैलकुलेशन से. एक सीबीएसई का क्वेश्चन है ये. सेकेंड पार्ट में कितना आ रहा है? ओके. सो डेल्टा एक्स इज 1.5 मीटर. फाइन. So this is it in wave optics. In fact, resolving power of microscope telescope सीबीएसई में नहीं, तुम्हारे में है, तो आई विल डू इट अगेन अलग से ना. उसमें सिर्फ फॉर्मूला है. इलेक्ट्रिसिटी में है पोटेंशियोमीटर. ठीक है वो कर लेंगे फिर. So now we'll start with EMI AC. Electromagnetic induction and alternating current. काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये. गरिमा तुम्हारे मार्क्स क्यों नहीं आ रहे टेस्ट में? करंट इलेक्ट्रिसिटी का मार्क्स देखा तुमने अपने कितने गंदे हैं? हाँ जी, क्या करेंगे अब भांजी का? वापस पढ़ूंगी। नहीं तो अब तो तीनों चैप्टर का टेस्ट है 20 तारीख को. फर्स्ट 3 चैप्टर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी. इस फ्राइडे 20th. वो मैं आज लाना भूल गया, नेक्स्ट क्लास में दे दूंगा. तुमने वो एक तो 5 मार्क का गलत कर दिया ना, उसने पूरा डेराइव नहीं किया. उसमें देखो ग्रुप में डाल दिया ना. तुमने वो 5 मार्क का तक किया ही नहीं पूरा. उसमें वो करना था ना, डिराइविंग ओम्स लॉ यूजिंग मॉलिक्यूलर प्रॉपर्टीज. यू डिराइव आई इक्वल टू एन ई वेडी. वो पूरा करना था. रो इक्वल टू m/n² टाइप टाउ वाला. और एक वो सेल वाले में सेल वाला था, एक एक दूसरा था, मैं सॉल्यूशन में डाल दूंगा अभी ग्रुप. तो वी हैव सीन दैट व्हेन यू पास current through a wire, it produces magnetic field, and the distance is d. Magnetic field is mu naught I by 2 pi d. Similarly, if there is a current carrying loop of radius a at the center, there would be magnetic field provided this current, which is mu naught I by
2A और 2R। आज में तुम्हें कब दोगे टेस्ट वगैरह? हाँ, अब तो तुम इकट्ठा तीनों चैप्टर वाला देना, ठीक है? उसको मिस मत करना। 20 तारीख को है वो। शनाया, यस सर। तुमने क्यों नहीं दिया करंट इलेक्ट्रिसिटी का? मैं आज देने वाली थी। आज तो, आज तो तुम आए ही नहीं हो। वो ट्रैफिक की वजह से ऑनलाइन करना। चलो अब 20 तारीख को जो टेस्ट है उसकी तैयारी करो, ठीक है? यस सर। तो वी हैव सीन दैट इफ current is passing through a wire or a solenoid, all in these cases magnetic field is produced, which is very similar to the magnetic field by a bar magnet, है ना? Normal bar magnet also produces magnetic field, as if field lines are coming from the north entering into the south. एनसीईआरटी में कौन सा चैप्टर है ये? चैप्टर नंबर 6 ना? हाँ हाँ, वही है। हम्म, मीनोड आया होता है ना? सोलेनोइड सेंटर पे। हाँ, इनसाइड। हाफ आता है, एंड्स पे आता है। हाफ इज द एंड्स। So a current carrying wire in a straight line form, circular form, or solenoid form produces magnetic field. Now, is the reverse possible, that we have magnetic field and using magnetic field can we produce current? So this was basically experimentally proved by Faraday. तूने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा फैराडे कांस्टेंट? नहीं, नहीं था? Faraday's laws of electrochemical equivalent नहीं है? अच्छा, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री तो है कोर्स में। हाँ, अब हट गया। अच्छा, जो लोग एब्सेंट हैं उनको डाल देता हूँ ना एक बार, बस पेरेंट्स को इन्फॉर्म कर देता हूँ। क्या? हाँ, वो भी इकट्ठा ही ला रहा था मैं आज। तो हुआ क्या कि somebody came over, तो बस क्या रश हो गया, तो वो सारे पेपर वहीं छूट गए। इलेक्ट्रोस्टैटिक वाला, पोटेंशियल वाला, जिसमें तुम्हारे 17 है। हाँ, वो भी था वो। तो फेरेडे वाज बेसिकली एक्सपेरिमेंटलिस्ट था वो ये। He used to do experiments and then prove laws. There are two types of scientists. कुछ साइंटिस्ट क्या करते हैं, थ्योरी 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 जो करते रहते हैं, और उनकी थ्योरी को बाकी लोग, बाकी साइंटिस्ट प्रूव करते हैं एक्सपेरिमेंट से। बट ही हिमसेल्फ वाज एक्सपेरिमेंटलिस्ट। तो ही डिड सम एक्सपेरिमेंट, उन एक्सपेरिमेंट को हम डिस्कस करते हैं। सो तो पहला एक्सपेरिमेंट उसका ये था, ही टुक अ कॉइल, उसमें एक गिलवानोमीटर कनेक्ट कर दिया टू नो द प्रेजेंस ऑफ करंट। ही टुक ए बार मैग्नेट, और बार मैग्नेट को उसने
इस लूप की तरफ पुश किया. दिस इज अ क्वाइल विच इज मेटालिक. इसमें कोई सोर्स ऑफ करंट नहीं है, ठीक है. वायर का कॉइल है ये. एक कॉपर का ले लो, एल्यूमिनियम का ले लो. कॉइल ऑफ अ वायर, एंड ही पुश्ड अ बार मैग्नेट टुवर्ड्स इट. तो जब इसने बार मैग्नेट को इसकी तरफ पुश किया, देन ही सॉ दैट देयर वाज करंट इन द वायर. करंट इंड्यूस्ड इन द वायर. पर जैसे ही उसने मैग्नेट को रोका, करंट जीरो हो गई, ठीक है. तो डायग्राम बना लो और ये लिख लो. So the first experiment done by Faraday was this, that he pushed a bar magnet towards a current loop, closed loop. उस लूप में कोई सोर्स ऑफ करंट नहीं है, कोई बैटरी नहीं लगी, कोई सेल नहीं लगा, फिर भी इसमें करंट थी. कैसे पता लगा? उसने गैल्वानोमीटर कनेक्ट किया. So there was deflection in the galvanometer, so you can know that there is current induced inside the loop. Second experiment, इस बार उसने बार मैग्नेट को अवे मूव किया. Again current induced, but this time the induced current in opposite direction. इस बार करंट इंड्यूस हुआ, लेकिन उसकी डायरेक्शन ऑपोजिट थी. ये हमें बनाना है ना? हाँ, सारे डायग्राम बनाओ. अनन्या से को बोलो अपनी दोस्त को क्लास क्यों नहीं कर रही, उसके तो चैप्टर आ रहा है ये. और वो उसका स्टे बैक है स्कूल में, तो मुझे पता नहीं आई है कि नहीं. अच्छा. हाँ जी. सारे चैप्टर इंटर रिलेटेड बहुत जरूरी है, सारे कॉन्सेप्चुअल बहुत आएंगे इसमें. उसके बाद उसने मैग्नेट को स्टेशनरी रखा और he moved the coil closer to the loop, and again there is induced current, and direction was same as in one. Direction of current same as in the first part. He moved the coil away, again induced current, and then finally फिफ्थ केस में उसने क्या किया, बार मैग्नेट और दोनों को मूव किया, एंड द कॉइल इन द सेम डायरेक्शन. इसकी वेलोसिटी भी सेम वेलोसिटी. दोनों को सेम वेलोसिटी से मूव किया, एंड इट वाज डिस्कवर्ड दैट देयर इज नो इंड्यूस्ड करंट. There was no induced current in this case. ये 5 एक्सपेरिमेंट. पहले वाले में नॉर्थ पोल कॉइल के नजदीक आ रहा है, करंट इंड्यूस हो रही है. सेकंड केस में नॉर्थ पोल दूर जा रहा है, करंट इंड्यूस हो रही है. थर्ड में कॉइल नॉर्थ पोल के पास आ रही है, करंट इंड्यूस हो रही है. बट फिफ्थ केस में दिस नो करंट इंड्यूस बिकॉज दोनों की वेलोसिटी सेम है.
अब उसके बाद तुम क्या कंक्लूड करोगे? देन देयर बी इंड्यूस करंट। तो इन एक्सपेरिमेंट में कुछ तुम क्या कर पाओ, क्या कंक्लूड करोगे, क्या होना चाहिए, क्या हो रहा है यहाँ पे? तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस तो यहाँ भी है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस तो यहाँ भी है, तो यहाँ भी इंड्यूस होना चाहिए। भाई फिफ्थ केस में देयर इज नो इंड्यूस करंट, तो मैग्नेटिक फील्ड तो हर जगह प्रेजेंट है, तो और क्या डिफरेंस क्या हो सकता है? और सोचो, बार मैग्नेट की वजह से क्या प्रोड्यूस होता है? फील्ड लाइंस, है ना? तो व्हेन फील्ड लाइंस पास थ्रू सम एरिया, तो उसको हम क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक फ्लक्स। किया था ना डिस्कस। मैग्नेटिक फ्लक्स इज बेसिकली एन बी ए कॉस थीटा। एन इज नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द लूप, बी इज द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, ए इज द एरिया ऑफ द लूप, एंड थीटा इज द एंगल बिटवीन द मैग्नेटिक फील्ड एंड द एरिया वेक्टर। तो मैग्नेटिक फ्लक्स ये है, ठीक है। बी का यूनिट है वेब, टेस्ला। ए है मीटर स्क्वायर, तो उसका यूनिट होगा टेस्ला मीटर स्क्वायर। मैग्नेटिक फ्लक्स वेरी सिमिलर टू इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इज अ स्केलर क्वांटिटी एंड इट्स यूनिट इज वेबर और टेस्ला मीटर पर स्क्वायर, टेस्ला मीटर स्क्वायर। तो जब हम बार मैग्नेट को कॉइल के नजदीक ला रहे हैं तो मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ रहा है ना, चेंज हो रहा है। जब हम बार मैग्नेट को दूर ले जा रहे हैं, तो सपोज अभी तीन फील्ड लाइंस हैं यहाँ पे, जब दूर जाएगा तो एक ही रह जाएगी, दो रह जाएंगी, तो मैग्नेटिक फ्लक्स कम हो जाएगा। यहाँ भी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है, यहाँ भी मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ेगा बिकॉज कॉइल पास में जा रही है। यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स डिक्रीज होगा बिकॉज कॉइल दूर जा रही है। इस केस में मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज नहीं होगा बिकॉज दोनों की रिलेटिव वेलोसिटी जीरो है। तो जितनी फील्ड लाइंस उसमें पास कर रही थी वो सेम वेलोसिटी जा रहे हैं ना, सेम फील्ड लाइन पास करेंगे। तो एक चीज तो मैं समझ में आ गई कि जब भी मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू ए कंडक्टर और कॉइल चेंज होगा, देयर बी इंड्यूस्ड करंट और इंड्यूस ईएमएफ, बिकॉज करंट का फ्लो होती है जब वहां पे वोल्टेज होता है। सो दैट इज नथिंग बट फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे। लिखो, फैराडेज लॉज ऑफ ईएमआई और फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इसमें डायग्राम बना ली सारे। फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, देयर आर टू लॉज। ये टू दो मार्क का स्टेटमेंट आएगा, ओनली द स्टेटमेंट। इसमें न्यूमेरिकल भी है चैप्टर में, लेकिन थ्योरी काफी है, कंसेप्चुअल बहुत ज्यादा है, डायरेक्शन बेस्ड। तो एक बार तुम्हारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए तो डायरेक्शन बताना बहुत इजी होगा। सो द फर्स्ट लॉ ईएमआई और फैराडेज फर्स्ट लॉ इज, लिखो, as long as magnetic flux, as long as magnetic flux through a coil as long as there is change in magnetic flux, as long as there is change in magnetic flux through a conductor, through a conductor or a coil, through a conductor or a coil, current or EMF is induced, current or EMF is induced. That is the first law of Faraday or first law of EMI. तो पहले लॉ से मैं बेसिकली एक क्वालिटेटिव है, इससे पता नहीं लग पा रहा, कोई फॉर्मूला नहीं है इसमें, लेकिन हमें सिर्फ इससे ये पता लग रहा है कि जब भी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा देयर बी करंट इंड्यूस्ड। अब मुझे बताओ इस फॉर्मूले को देख के, मैग्नेटिक फ्लक्स हम कितने वे से चेंज कर सकते हैं?
नंबर ऑफ टर्न्स, मैग्नेटिक फील्ड, एरिया एंड द थीटा, है ना? तो या तो हम ये चेंज कर दें तब भी फ्लक्स चेंज होगा, या बी चेंज कर दें, जैसे इस वाले सारे डायग्राम में बी चेंज किया था, है ना? या एरिया को भी हम चेंज कर सकते हैं। सपोज यू हैव मैग्नेटिक फील्ड, जब मैं क्रॉस बना रहा हूँ इसका मतलब क्या है, मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पर है? इनटू द पेपर, इनटू द बोर्ड, ठीक है? यहाँ पे कोई इरेगुलर शेप का लूप है, वायर का, मेटल होना चाहिए वो, ठीक है? इस इरेगुलर शेप ऑफ लूप को मैं सडनली एक सर्कुलर लूप में कन्वर्ट कर देता हूं, तो विल द मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज और नॉट? यस। कम होगा या ज्यादा होगा? नहीं। फॉर गिवन पेरीमीटर एरिया ऑफ सर्कल इज मैक्सिमम, लिख लेना ये। फॉर गिवन पेरीमीटर एरिया ऑफ circle is maximum. For given perimeter, area of circle is maximum. That means the magnetic flux inward increase करेगा, मतलब फ्लक्स चेंज होगा। अब बाद में हम डायरेक्शन पे आएंगे, डायरेक्शन किस तरह से होती है, बट फॉर श्योर एरिया चेंज हो रहा है। जब एरिया चेंज हो रहा है तो फ्लक्स चेंज होगा, फ्लक्स चेंज होगा तो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा। तो वी कैन चेंज एरिया एंड वी कैन इंड्यूस ईएमएफ और करंट। देन थीटा से कैसे करोगे तुम? यस। जैसे कि तुमने देखा था मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में, दिस ए कॉइल, है ना? और उस कॉइल को अगर हम रोटेट करें, टर्न करें, किसी इस कॉइल को टर्न करो तो उसका जो एरिया वेक्टर है, बिकॉज फिजिक्स में कॉइल हैज ए एरिया, एंड एरिया वेक्टर क्या होता है? हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। क्या हुआ उसमें? स्कूल में क्या चल रहा है अभी? क्यों? भाई अगर तुम स्कूल में नहीं जा रही तो यहाँ पे तुम रेगुलर क्लास में आ सकती हो फिर तो। थोड़ा लेट आती है ना? हाँ चलो, पहले से तो बेटर हो गया, पहले 15 मिनट आती तुम। तो जब इस कॉइल को तुम रोटेट करोगे तो क्या होगा? एंगल विल चेंज, थीटा विल चेंज। सपोज हम इस कॉइल को ओमेगा वेलोसिटी से रोटेट कर रहे हैं, एंगुलर वेलोसिटी से, तो थीटा हो जाएगा ओमेगा टी। तो इफ यू टर्न अ कॉइल इनसाइड यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, बेसिकली थीटा चेंज होगा, थीटा चेंज होगा तो कॉस थीटा चेंज होगा, क्योंकि फ्लक्स का फॉर्मूला है एन बी ए कॉस ओमेगा टी। तो ये चेंज हो गया, जब फ्लक्स चेंज हो गया उसमें करंट इंड्यूस्ड हो गई, एंड दिस इज नथिंग बट द प्रिंसिपल ऑफ, क्या है ये? एसी जनरेटर। थैंक्स टू फैराडे लॉ, थैंक्स टू फैराडे वी कैन वी आर यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी, बिकॉज जनरेटर में यही होता है, कॉइल को रोटेट करते हैं। उस कॉइल को तुम कैसे रोटेट करोगे? या तो पानी को ऊपर से गिराओ, जैसे कि डैम उसमें होता है, हाइट में वाटर स्टोर होता है डैम में, वो पानी गिरता है, टरबाइन को रोटेट करता है वाटर टरबाइन, वाटर टरबाइन से फिर क्या होता है? एसी जनरेटर घूमता है। या फिर नॉर्मल जो घर में वो लगे होते हैं जनरेटर, उसमें क्या होता है? इंजन होता है, उसमें फ्यूल होता है, पेट्रोल या डीजल, उसको बर्न करने से वो रोटेट करता है, फिर उसको रोटेट करता है। हर जगह ये काम आता है। नॉर्मल साइकिल का डायनोमो जो होता है, साइकिल के व्हील में लग जाता है, तो जब वो रोटेट करता है तो वो लाइट प्रोड्यूस करता है। द सिंपल प्रिंसिपल ऑफ फेराडे, कि वेन एवर दर इज अ चेंज इन फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स, करंट और ईएमएफ इज इंड्यूस्ड। तो वी कैन चेंज मैग्नेटिक फ्लक्स इन ए कंडक्टर और कॉइल बाय 4 ways, ठीक है? पूरा घूमता रहेगा ये कंटिन्यूअसली, हाफ रोटेट ही नहीं करता। नहीं नहीं, उसमें क्या होता है, डीसी में वो कम्यूटेटर लगा देते हैं, वो फ्लिप हो जाता है, मतलब कॉन्टेक्ट फ्लिप होते हैं, वो रोटेट सेम डायरेक्शन में करता है डीसी जनरेटर। So first law was basically statement that whenever there is change in magnetic flux through a conductor or a coil, current will be induced, and that's it, ठीक है? Second law is more about
कितना इंड्यूस हो रहा है एंड क्या उसका फॉर्मूला है। सेकेंड लॉ लिखो अब। अकॉर्डिंग टू Faraday's second law, according to Faraday's second law of EMI, EMI मतलब electromagnetic induction. According to Faraday's second law, induced EMF is directly proportional to induced EMF is directly proportional to the rate of change in magnetic flux. The rate of change in magnetic flux. तो अगर इंड्यूस्ड ईएमएफ को मैं ई से रिप्रेजेंट करूं तो इंड्यूस्ड ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा फाई बाय डेल्टा टी, रेट ऑफ चेंज। और इफ यू हटाओ द साइन तो यहाँ पे माइनस साइन आ जाता है, -1 इज अ कांस्टेंट। इसको तुम चाहो तो डेल्टा की जगह -d∅dt भी लिख सकते हो। अब क्वेश्चन ये आता है कि व्हाई द नेगेटिव साइन। नेगेटिव साइन इज ड्यू टू Lenz's law. The negative sign is due to Lenz's law. अगेन फिर लेंजेस लॉ का स्टेटमेंट आएगा अलग से 1 मार्क का, उस पर कई सारे कंसेप्चुअल भी आते हैं। तो स्टेटमेंट ऑफ लेंजेस लॉ इज फॉर 1 मार्क। व्हाट इज लेंजेस लॉ? Lenze's law basically states that the direction of induced EMF or current is in such a way that it opposes the cause। ठीक है, अब मैं तुम्हें लिखवाता हूं, पहले लिखो। अकॉर्डिंग टू Lenz's law, according to Lenz's law, direction of induced EMF or current direction of induced EMF or current is in such a way that it always opposes the cause। Direction of induced current is in such a way that it always opposes the cause। अंडरलाइन कर लेना opposes the cause को। इस चीज को आप समझते हैं, ये लिख लिया ना यहां तक। So now we have a formula also to find the change in magnetic flux। नेगेटिव साइन इज तो 2 मार्क का ये आएगा, लेंजेस मार्क का स्टेटमेंट 1 मार्क का आएगा। इस पे न्यूमेरिकल आ सकते हैं और डायरेक्शन के क्वेश्चंस आएंगे बहुत सारे लेंजेस लॉ पे। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड लेंजेस लॉ है क्या। ये नॉर्थ पोल है, साउथ पोल ये है। थोड़ा सा प्रीवियस चैप्टर का थोड़ा सा देख लेते हैं। अगर मैं यहाँ पे एक नॉर्थ पोल बनाता हूँ, मतलब फील्ड बाहर की तरफ है ना, तो करंट क्या होगा? ये एरो बाहर शिफ्ट कर दो, करंट हो गया एंटी क्लॉकवाइज। कहने का मतलब जब भी करंट एंटी क्लॉकवाइज होगा लूप के अंदर फील्ड बाहर की तरफ होता है। और यू कैन से दैट whenever you face a loop such that current is anti-clockwise, मैग्नेटिक फील्ड हमेशा बाहर की तरफ होता है। एक और डायग्राम देखो, साउथ पोल बनाओ, साउथ पोल के एंड्स पे एरो लगा दो, करंट हो गया क्लॉकवाइज। तो जब भी करंट क्लॉकवाइज होता है तो साउथ पोल बनता है, साउथ पोल का मतलब क्रॉस, फील्ड इज इनवर्ड, मैग्नेटिक फील्ड इज इनटू द प्लेन ऑफ द पेपर, प्लेन ऑफ द बोर्ड। ये दो चीज तुम्हें याद करनी है, ये हमने लास्ट चैप्टर में किया था। अब यहाँ पे आते हैं, इसमें करंट इंड्यूस हो रहा है वो तुमने देख ही लिया था।
लूप रेस्ट पर है, बार मैग्नेट का नॉर्थ पोल लूप की तरफ आ रहा है। तो कॉज क्या है? कॉज इज नॉर्थ पोल कमिंग क्लोजर। समझना बहुत जरूरी है इसको। तो अगर नॉर्थ पोल पास आ रहा है तो अकॉर्डिंग टू लेंजेस लॉ में क्या करना है? अकॉर्डिंग टू लेंजेस लॉ में नॉर्थ पोल को पास आने से रोकना है। वही ना लेंजेस लॉ, पढ़ के सुनाओ क्या है असमी, पढ़ना एक बार लेंजेस लॉ क्या है लाउडली मैं। राइट, तो इंड्यूस ईएमएफ और करंट की डायरेक्शन इस तरह से होगी ताकि वो कॉज को अपोज करे। कॉज हमारा क्या है? नॉर्थ पोल पास आ रहा है, हमें नॉर्थ पोल को पास आने से रोकना है। तो तुम नॉर्थ पोल को कैसे रिपेल करोगे? बाय प्रोड्यूसिंग नॉर्थ पोल नहीं, साउथ पोल से अट्रैक्ट होगा। तो करंट शुड बी इन सच ए वे दैट कि लूप में नॉर्थ पोल प्रोड्यूस हो जाए। नॉर्थ पोल प्रोड्यूस होगा तो नॉर्थ पोल को रिपेल करेगा। नॉर्थ पोल कैसे प्रोड्यूस होगा? करंट। परफेक्ट। ये है लेंजर्स लॉ, इस पे बेस्ट क्वेश्चन आएंगे। अब मैं एक बार तुम्हें लिखवा देता हूँ, फिर उसका अगला क्वेश्चन तुम्हें खुद से लिखना है, ठीक है? लिखो। एज, गरिमा लिख रही हो ना, गरिमा शनाया, इसका रीजनिंग लिख रहे हैं, करंट का डायरेक्शन निकाल रहे हैं। एज नॉर्थ पोल इज कमिंग क्लोजर, एज नॉर्थ पोल is coming closer to the loop, the induced current, the induced current will flow in such a way, induced current will flow in such a way so as to oppose, so as to oppose the coming closer of North Pole. Oppose the coming closer of North Pole. That is, it will produce North Pole. That is, it will produce North Pole to repel, to repel the north pole of the bar magnet which is coming closer. ये समझ में आ गया यहां तक? आगे लिखो। In order to produce north pole, in order to produce north pole, current will flow in anti-clockwise, induced current will flow in anti-clockwise direction when seen from right. यहां से जब तुम देखोगे तो करंट का डायरेक्शन क्या होगा? एंटी क्लॉकवाइज। सो दिस इज द लेंजेस लॉ। हाँ, यहां से देख रहे हैं। ऑब्जर्वर इज हियर। So when you see from the right side, then the current, induced current would be anti-clockwise. इसको समझ लो, नेक्स्ट पार्ट में खुद से करना, खुद से लिखना भी होगा। शनाया समझ में आ गया? तो जो कॉज है जिसकी वजह से इंड्यूस ईएमएफ हो रहा है उसको अपोज करना है। Yes. नेक्स्ट डायग्राम बना रहा हूं, आंसर तुम खुद से करोगे, सोचो एंड आंसर। पूरे अपने वर्ड्स पे लिखना, आई आस्क यू वन बाय वन। प्रॉपर लिखो, कॉज क्या है, उसका पूरा रीजनिंग लिखो और आंसर कर लो। सी द कॉज इज साउथ पोल इज मूविंग अवे। हमें इसको अपोज करना है कि साउथ पोल दूर नहीं जाना चाहिए। साउथ पोल को अट्रैक्ट कैसे करोगे? बस इसको अपने शब्दों में लिख लो, बस अपने वर्ड्स में लिखो। जो कॉज है उसको हमें अपोज करना है। कॉज क्या है? नॉर्थ पोल मूविंग अवे, नहीं, साउथ पोल मूविंग अवे।
गरिमा क्या लिखा सुनाओ पढ़ के। लिख रही हूँ, अभी तो आधा लिखा है। अच्छा, ठीक है, लिखो पूरा पूरा लिख के सुनाना फिर। ठीक है। बहुत शॉर्ट कर दिया तुमने। हाँ, लेंजेस का भी नाम लो बेचारा, उसका तो तुमने नाम ही नहीं लिया। शनाया लिख लिया? खत्म होने वाला है, मतलब हो ही गया है। बताओ, सुनाओ। As South Pole is moving away from the closed loop, the हम्म। induced current will flow in such a way uh, to oppose the moving away of South Pole. परफेक्ट। That is, it will produce North Pole to attract the South Pole of the bar magnet. गुड। In order to produce North Pole, induced current will flow from anti-clockwise direction. परफेक्ट, इसमें लेंजेस का भी नाम डाल दो, अपोज द कॉज में ब्रैकेट में लिख दो अकॉर्डिंग टू लेंजेस लॉ। ठीक है। अस्मी, तो तुम्हें समझ तुम आ गया ना, वैसे ही बता दो क्या समझ में आया है। जैसे समझा दो। साउथ पोल दूर जा रहा है तो क्या करना पड़ेगा? कॉज है साउथ पोल मूविंग अवे, तो साउथ पोल मूविंग अवे को रोकना है। तो साउथ को कौन अट्रैक्ट करता है? नॉर्थ। तो नॉर्थ पोल प्रोड्यूस होना चाहिए, है ना? तो नॉर्थ पोल का प्रोड्यूस होता है, देखो वहां पे नॉर्थ पोल प्रोड्यूस होता है, करंट होती है। बस ये लिखना है, उसी को वर्ड्स में लिख दो। जो समझ में आ रहा है उसी को वर्ड्स में लिख दो। गरिमा, गाना क्या सुनाया तुमने, क्या लिखा है? गा के As सुन। South Pole is moving away from the loop, the हाँ। induced current will flow in such a way so as to attract the South Pole. That is, it will produce North Pole to attract South Pole of the magnet. In order हम्म। to produce, ये वाली तो same line लिखी है मैंने. क्या? In order to produce North Pole, induced current will flow in anti-clockwise direction when seen from right. बिल्कुल राइट है। आराध्य, क्या लिखा है? सेम बताओ ना, सेम क्या लिखा है सुनाओ तो सही। फ्रॉम द विच साइड? राइट साइड लिखो ना। हाँ, अगस्त से बताओ क्या लिखा। हम्म। हाँ, ये जो समझ में आ रहा है उसको हिंदी में लिखना है, और क्या, सिंपल सी बात है। बस में लिख लिया तुमने अब? लिखो फिर अब, मैं लिखवा रहा हूँ। एज साउथ पोल इज मूविंग अवे, as south pole is moving away, the direction of induced current, the direction of induced current in the loop will be in such a way, the direction of induced current in the loop will be in such a way to oppose the moving away of south pole, to oppose the moving away of south pole. That is, it will induce a north pole, it will induce a north pole so that south pole is attracted. ब्रैकेट में देखो अकॉर्डिंग टू लेंजेस लॉ। To produce north pole, to produce north pole, current has to flow in anti-clockwise direction.
तो ये हो गया। ये बनाओ, इसका लिखो अब। इस बार साउथ पोल लूप के क्लोजर आ रहा है। हो गया। इसका असाइनमेंट है इस EMI AC का। ये लो। यहाँ ब्रैकेट में लिख लो लेंजेस बाय लेंजेस लो। हाँ तो साउथ पोल में कौन सी करंट किधर होगी? साउथ पोल का प्रोड्यूस होता है करंट इज क्लॉकवाइज। बना था ना मैंने, ये देखो। क्लॉकवाइज होगी करंट। ठीक। हो गया शनाया, गरिमा? Yes, sir. Sir. This bar current will be clockwise. As pole is coming closer, the cause is the south pole coming closer. So, according to Lenz's law, coming closer of south pole has to be opposed by producing a south pole over here. To produce south pole, current has to be clockwise. इस बार आंसर clockwise आएगा. More questions? This is uniform magnetic field, which is into the plane of the board. Board के अंदर की तरफ है, into the page, and
there is a circular loop which is entering inside the field. एक सर्कुलर लूप है जो कि इस फील्ड के अंदर एंटर कर रहा है. So first question is, will there be induced current or not? And if at all there is induced current, then what is the, हाँ, B is the magnetic field. लूप अभी बाहर था, अब उस लूप को हम अंदर ले आए. हम्म. होगा. तो करंट तो इंड्यूस होगा. तो अगर करंट इंड्यूस होगा तो किस डायरेक्शन में होगा? क्लॉकवाइज. क्यों? बताओ. क्लॉकवाइज होगा तो क्यों होगा, एंटी क्लॉकवाइज तो क्यों होगा? लूप अंदर जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जा रहा है. तुम ये देखो, जब लूप बाहर था शुरू में तो उसके अंदर फ्लक्स कितना था? जीरो था. तो जैसे जैसे लूप एंटर करेगा तो उसमें फ्लक्स इंक्रीज करेगा, जो किधर है? इनवर्ड फ्लक्स है. तो कॉज क्या है? इनवर्ड फ्लक्स इज इंक्रीजिंग. ये इसका कॉज है. तो इनवर्ड फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है, उसको हमें बढ़ने से रोकना है. जब लूप को तुम एंटर करोगे तो इनवर्ड फ्लक्स बढ़ेगा. इनवर्ड फ्लक्स को बढ़ने से रोकना तो मतलब हमें आउटवर्ड फ्लक्स प्रोड्यूस करना पड़ेगा. इनवर्ड फ्लक्स इंक्रीज कर रहा है, उसको अपोज करना है, तो उसको कम करना है. टू अपोज दिस वी हैव टू प्रोड्यूस करंट, हैज टू प्रोड्यूस आउटवर्ड फ्लक्स और आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड. तो आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड कैसे प्रोड्यूस होगा? जब करंट होगी एंटी क्लॉकवाइज. ये इसका आंसर है. इस टाइप के कंसेप्चुअल आएंगे बहुत. हाँ, नॉर्थ पोल. आउटवर्ड का मतलब है नॉर्थ पोल होना चाहिए. किसी लूप में अगर आउटवर्ड फील्ड है तो नॉर्थ पोल है, मतलब करंट इज एंटी क्लॉकवाइज. किसी लूप के अंदर फील्ड अगर क्रॉस है मतलब साउथ पोल बन रहा है, करंट हैज टू बी क्लॉकवाइज. लिख लो इसका आंसर. व्हेन when the loop is pushed inside, when the loop is pushed inside, inward magnetic flux, inward magnetic flux, ब्रैकेट में लिख लो, as B is inward, capital B is inward, ब्रैकेट में as capital B is inward, है ना? ओरिजिनल B inward है. तो मैंने क्या लिखवाया? एज ए लूप. लूप. हाँ. नहीं, मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज है, ये नहीं लिखवाया. नहीं, अभी मैंने क्या लिखवाया? एज द लूप इज पुश्ड इनसाइड. हाँ, इनवर्ड मैग्नेटिक फ्लक्स. हाँ, inward magnetic flux increases, which is the cause of, which is the inward magnetic flux increases, which is the cause of, which is the cause of induced EMF or current, which is the cause of induced EMF or current. According to Lenz's law, आगे लिखो. According to Lenz's law, this inward increasing flux, this inward increasing flux has to be opposed. This inward increasing flux has to be opposed by
producing outward flux, by producing outward flux. By producing outward flux. For that induced current has to be, in anti-clockwise direction. एक मिनट. तो अब लेंजेस लॉ काफी हद तक समझ में आ गया ना. Suppose we have magnetic field which is out of the page, dot. Existing magnetic field is outward, uniform field, and there is irregular shape of wire which is suddenly converted into a circular loop. ठीक है? Identify the direction of induced current. Irregular loop of wire is converted into a circular loop. Find the direction of induced current. पूरा लिखो समझ के. नहीं, सिंपल सा फैक्ट है. फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है, दैट डिसाइड. एरिया बढ़ रहा है, तुम्हें बताया था अभी मैंने, सर्कुलर लूप का एरिया बढ़ता है. हाँ, तो किधर फ्लक्स बढ़ रहा है? आउटवर्ड फ्लक्स बढ़ रहा है, इनवर्ड फ्लक्स बढ़ रहा है, ये देखना पड़ेगा तुम्हें. फिर उसको अपोज करना है, उसको बढ़ने से रोकना है. तो उसको अपोज करना है, तो इनवर्ड होगा, इनवर्ड के लिए. हाँ बस. बट दैट यू नीड टू राइट, लिख लो उसको पूरा. गरिमा एंड शनाया लिखो उसको पूरा. Yes, sir. Yes, sir. Direction of current anti-clockwise होगी ना? क्यों? जब हम Outward में रेगुलर शेप को सर्कुलर लूप में कन्वर्ट करेंगे, एरिया बढ़ेगा. इस बार मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है, एरिया बढ़ रहा है ना, बिकॉज फॉर गिवन पेरीमीटर एरिया ऑफ सर्कल मैक्सिमम होता है. अच्छा ठीक है. तो जब एरिया बढ़ेगा तो फ्लक्स बढ़ेगा, लेकिन एग्जिस्टिंग फील्ड आउटवर्ड है. एज द एग्जिस्टिंग फील्ड इज आउटवर्ड, द फील्ड आउटवर्ड बढ़ेगा, फ्लक्स आउटवर्ड बढ़ेगा. Cause is outward flux is increasing. So we have to oppose the cause according to Lenz's law. Outward flux को हमें बढ़ने से रोकना है, तो हमें इनवर्ड फ्लक्स करना पड़ेगा, इंड्यूस. इनवर्ड का मतलब करंट हैज टू बी
clockwise. Clear? शनाया लिखा? पूरा नहीं लिखा। मैं क्या लिखा? Area increases, also the flux, outward flux will increase. Also, or resulting in increase in outward flux. As area increases, it will result in increasing in the outward flux. To oppose that, inward flux has to be induced. Inward flux has to be induced, and for that, current has to be clockwise. क्या लिखा इसमें? No, as the irregular shape is converted to circle loop, its area increase, hence outward flux increases. ठीक है? हाँ, गुड, परफेक्ट है. तो ये इसका आंसर है. शनाया लिख लिया ना? As loop, Yes, sir. irregular loop is converted into a circular loop, its area would increase, resulting in increase in outward flux. Resulting in increase in outward flux because area बढ़ रहा है. So the cause is outward flux is increasing, which has to be opposed by Lenz's law. So we have to produce or induce inward flux. For inward flux, inward field has to be produced. Inward field मतलब clockwise current. So ये तुम्हें समझ में आ चुका है अब सारा. एक क्वेश्चन करो. There is a rectangular loop. There is a rectangular loop having 150 turns, 150. There is a rectangular loop having 150 turns, area as 200 centimeters square, area as 200 centimeters square. Initially, its area vector is along uniform magnetic field. Initially, its area vector is along uniform magnetic field 4000 Gauss, which is 4000 Gauss. Suddenly, it is rotated. Suddenly, it is rotated through an angle of 180 degree. Suddenly, it is rotated through an angle of 180 degree. And the time taken is 1 millisecond. Time taken is 1 millisecond. Find induced EMF and induced current also if resistance is, find induced EMF
and induce current if resistance is 10 ohm. नंबर ऑफ टर्न्स दे रखा है, एरिया दे रखा है, मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है 4000 गॉस, इनिशियली पैरेलल है, फिर उसको 180 डिग्री से टर्न कर रहा है. लास्ट लाइन क्या थी? Find the induced EMF and induced current if resistance of the loop is 10 ohm. सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में अगर कन्वर्ट करना है 10⁻⁴ से मल्टीप्लाई करोगे. 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर इज 10⁻⁻² मीटर. तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इज 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर. 1 सेंटीमीटर क्यूब इज 10⁻⁻6 मीटर क्यूब. फॉर्मूला कौन सा यूज करना है? डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी यूज करोगे ना, पहले फ्लक्स वाला. लेकिन दो फ्लक्स है ना, फाइनल इनिशियल. φ2 माइनस φ1 बाय डेल्टा टी. इनिशियली वो उसके पैरेलल था मैग्नेटिक फील्ड के. तो हम इसको चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं, सिर्फ थीटा चेंज हो रहा है ना. NBA कॉस θ2 माइनस NBA कॉस θ1 ऐसे कर लो बाय डेल्टा टी. डबल कैलकुलेशन अवॉइड हो जाएंगे इससे. फ्लक्स का फॉर्मूला होता है NBA कॉस थीटा. इस क्वेश्चन में सिर्फ थीटा चेंज हो रहा है बिकॉज क्वाइल का ओरिएंटेशन चेंज हो रहा है. ओरिएंटेशन ऑफ द क्वाइल इज चेंजिंग. पहले जीरो था, पैरेलल था ना. एरिया वेक्टर वाज पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड. तो θ2 180 है एंड इनिशियली θ1 कितना है? 0 डिग्री है. तो माइनस ई इज इक्वल टू NBA कॉमन ले लो, cos 180 माइनस cos 0 बाय डेल्टा टी. डेल्टा टी को भी तुम्हें कन्वर्ट करना पड़ेगा सेकंड, मैंने मिली सेकंड दिया हुआ है ना. सो मिली सेकंड को कन्वर्ट करो सेकंड में 10⁻⁻3. अब वैल्यूज डाल दो. यूनिट क्या आएगा? यूनिट क्या होगा? वोल्ट. और करंट भी निकालना है. देखो माइनस तो हट जाना चाहिए. NBA cos 180 इज -1, cos 0 इज 1. तो E इज इक्वल टू आ गया 2NBA बाय डेल्टा टी. 2 × 150. एरिया कितना है? 2 × 10⁻².
B is 4000 गॉस को भी कन्वर्ट करोगे? गॉस को टेस्ला में कन्वर्ट करना पड़ेगा ना, गॉस तो सीजीएस यूनिट है। गॉस को टेस्ला में -4 होता है। डिवाइडेड बाय डेल्टा टी 1 मिली सेकेंड, ये आ गया। तो इससे ये कट जाएगा, एक जीरो भी कट जाएगी, दो जीरो इससे कट जाएगा। थ्री हंड्रेड इंटू 8, 2400 वोल्ट आ रहा है। चेक कर लो एक बार। तुम लोगों ने मिली सेकेंड को कन्वर्ट नहीं किया शायद। 60 इंटू 4 नहीं आएगा 4000 गॉस का? मैग्नीट्यूड तो 4000 गॉस है, उसको -4 कर दिया था मैंने। तो 600 इंटू 4 हो गया ना भाई। 150 इंटू 3, 300 हो गया। 300 ही 2 इंटू 4 8 हो गया। हाँ, 2400 आ गया। हाँ, अब इंड्यूस ईएमएफ की वैल्यू पता लग गई, इंड्यूस करंट निकाल लेते हैं। ये तो नॉर्मल ओम्स लॉ लगेगा अब तो। सो इंड्यूस करंट वुड बी E बाय आर। 240 एम्पियर। हो गया शनाया? यस। मैं तुम लोगों को पीडीएफ शेयर कर दूंगा इसके असाइनमेंट की। तुम लोग आज आए ही नहीं ना, बाकी लोग तो आ चुके हैं। मैंने दे दिया, नेक्स्ट टाइम आई गिव यू द हार्ड कॉपी। अगर ये इसको हम 180 से टर्न ना करके 90 डिग्री से करते तो फिर क्या आंसर होता है? 0 से 90 कर देते हैं। हाँ 1200। राइट। तो 0 से 90 होता, cos 90 जीरो हो जाता, तो इसका आधा हो जाता फिर आंसर। तो 1200 वोल्ट हो जाएगा इसका इंड्यूस ईएमएफ। करंट विल बी हाफ ऑफ इट, 120 एम्पियर। सो विल बी लाइक दैट। तो इस फॉर्मूले को हम डिफरेंशिएशन के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, d5/dt, और वैसे भी कर सकते हैं। ये द फाइनल माइनस इनिशियल बाय डेल्टा टी। सो नेक्स्ट क्लास में मोर क्वेश्चंस ईएमआई के, ठीक है। और अब फर्स्ट 3 चैप्टर की तैयारी शुरू कर लो, उसका टेस्ट होगा। शनाया तुम्हें ये वाला टेस्ट देना है, इलेक्ट्रिसिटी का देना है तो बताओ। आई विल नॉट अपलोड द सॉल्यूशन ऑफ दिस। कब दूं? जितना जल्दी हो सके कल दे कब? दो। कल तो मैथ्स का भी कल टेस्ट है। मैथ्स का है, अच्छा। ट्यूसडे दे दो। ठीक है। ओके। सर, हम्म। मैं मैथ्स का संडे को दे दूं या मंडे को, क्योंकि कल मैं थोड़ा लेट हो जाऊंगी। क्यों? कल मेरी फ्रेंड घर पे आ रही है। अब तुम देख लो, मैम से बात कर लेना, क्योंकि तुम्हें मैथ्स के टेस्ट सब लोगों ने बहुत डिले कर दिया है। दे तो दूंगी, मैं मंडे से पहले ही दे दूंगी। संडे तो इंस्टीट्यूट बंद होता है वैसे। तो मंडे मतलब स्कूल से आके दे दूं 4-5 के अराउंड। ठीक है। तो ठीक है, ठीक है। ओके। क्लास के समय टेस्ट या फिर बाद या फिर पहले दूं क्लास के? कल कब? हाँ। पहले ही देना पड़ेगा। ठीक है।
हाँ Thank you, sir. Bye. बाय